Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, the current lesson that is going on is biomolecules. That is very important. So be serious with the video lecture. Each and every video is important for you, and that make a plus point for you. That make a very important concept in you when you are going to study in the chemistry, even in the biology, because this may help in the chemistry as well as biology too. So be with the video lecture till the end. In this video session you will learn about the types of different kinds of amino acids. As you all know, in previous video lecture I have where you the proteins are the polymers in which the monomeric units are amino acids. In previous video lecture, that is before amino acids, you have learned the carbohydrates. That was the first biomolecules, and the second biomolecules are the proteins. Actually, each and every biomolecules in our syllabus is in the form of polymeric units. In every kinds of polymeric unit, there is at least one monomers involved. But for the protein molecules, several monomeric units involved in the polymerization, so that the polymers of proteins are heteropolymers type. In case of carbohydrates, you have seen the similar types of monomers involved in the polymeric structure. So carbohydrates are homopolymers. And in this structure, in the structure of proteins, in previous video lecture you have learned the proteins are heteropolymeric units. Proteins are heteropolymers. So along with the video lecture you will learn the heteropolymerization of proteins, in which different kinds of amino acids are involved. Now back to the types, how many types of amino acids exist in the formation of proteins. The role of proteins and essentiality and importance of protein was discussed in previous video lecture. Now the types of amino acids. Actually there are 300 amino acids. 300 amino acids are discovered. 300 amino acids are still discovered, that are found almost every kinds of living organisms. Every kinds of, whether the bacteria, virus, every kinds of living organisms cannot exist without protein. So protein form the essential components in them. Now the 300 proteins are not actual form of our body. Our body required only 20 types of proteins. That is, human body required only 20 types of amino acids. 20 types of amino acids. It means for the formation of different types of proteins in our body. Proteins in form of enzyme, proteins in form of hormones, proteins in form of antibody, proteins in form of receptors, proteins in form of different kinds of body mass, that is the collagen fibers, the muscles of our body, only required 20 types of proteins. That is 20 types of amino acids. Without amino acids, protein cannot be synthesized. And the synthesis of protein we will discuss in next class, that is in class 12, whatever the important mechanism of protein synthesis. There is, begin from the genes, that is by means of transcription, and later the process of actual protein synthesis happen in the cytoplasm, that is by means of translation. Later it will be discussed. Don't be confused, but the monomeric units comes in the cytoplasm through the different kinds of food resources. So the monomeric unit is amino acids that may comes from the different kinds of food molecules that you feed. So even if you feed the food molecules, then you get proteins, and that protein later convert into amino acids, and that amino acids are later converted into the proteins in our body. Suppose that if you are going to feed the egg, आप अंडे खा रहे हैं, अंडे में प्रोटीन इस तरह से अरेंज है, A, B, C, D. तो अंडा आपके बॉडी में गया, अंडे का एल्बुमिन प्रोटीन आपके बॉडी में गया, ठीक है, फीड किए इसको, उसके बाद क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, तो ये ब्रोक डाउन हो गया. कैसे ब्रोक डाउन हो गया, A, B, C, D, ये सब हमारे बॉडी में ब्रोकन डाउन हो गया, टूट गया. अब ये बॉडी के हिसाब से फिर अरेंज होगा. ये तो मुर्गी के हिसाब से अरेंज हुआ था ना, अकॉर्डिंग टू हेन, ये मुर्गी के हिसाब से अरेंज हुआ था. आप बिरयानी खा रहे हैं या फिर नॉनवेज कोई भी खा रहे हैं, तो उसके बॉडी में जो मांस है वो मांस
उस ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से अरेंज है। आपके बॉडी में आएगा तो ब्रेक होगा, टूटेगा, फिर आपके बॉडी के हिसाब से वो अरेंज होगा। ठीक है, तो ये पहले ब्रेक होगा। ये ब्रेक कैसे होगा? प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू। बहुत सारे एंजाइम है जो इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको ब्रेक करता है। ठीक है, प्रोटीन के मोनोमेरिक यूनिट के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तब जाके वो जुड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमेरिक यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तब जाके जुड़ते हैं। तो कोई चीजें, कोई प्रोटीन वाली चीजें आप खाते हैं तो बॉडी में टूट जाता है। अब उसके बाद वो टूटने के बाद हमारी बॉडी के हिसाब से, सपोज दैट हमारे बॉडी के हिसाब से सिर्फ ए, बी और डी जरूरी है, तो ए, बी, डी जरूरी है कि एक सीक्वेंस में हो सकता है पहले डी अरेंज हो जाए, फिर जो है ए अरेंज हो जाए, फिर जो है बी अरेंज हो जाए, तो और डी जो है जो बच जाएगा, ये कौन, जो सी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो जो जरूरी प्रोटीन होता है वही हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व होता है, बाकी जो गैर जरूरी है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। स्नैक अगर एग खा रहा है तो उसमें पॉइजन बनेगा, आप एग खा रहे हैं तो आप में पॉइजन नहीं बनेगा। रीजन क्या है? स्नैक में यही एग उस हिसाब से एडजस्ट होगा। हो सकता है कि बी, ए, सी, डी ऐसे अरेंज हो और आपके बॉडी में डी, सी, ए, बी ऐसे अरेंज हो। थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना अमीनो एसिड का सीक्वेंस, तो प्रोटीन का नेचर बदल जाएगा। वो टॉक्सिक हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी जो लिविंग बॉडी में आती है कुछ नहीं होता, प्रोटीन्स होते हैं, बस वो एक अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, तो अब मोनोमेरिक यूनिट की मैं बात कर दूं, ये मोनोमेरिक यूनिट हमको कहां से मिलता है? फूड आइटम के बेस पे। ठीक है, अब ये मोनोमेरिक यूनिट यानी कि एमिनो एसिड जो फूड आइटम से में मिलता है या बॉडी में बनता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होता है नॉन एसेंशियल। इट मींस आपकी बॉडी में जो 20 टाइप्स के प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम या एंटीबॉडी बनाने में, वो सिर्फ 20 है। 20 से ज्यादा कोई भी अमीनो एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो प्रोटीन्स में मिलियंस ऑफ द अमीनो एसिड्स हो, वो सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। अबाउट द 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, 10 आर एसेंशियल, 10 are essential and 10 are rest 10 are non-essential, non-essential। जो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में एसोसिएट है एंजाइम, हार्मोन्स और बाकी काम के लिए, उसमें से 10 जो है एसेंशियल होता है और 10 नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई? एसेंशियल अमीनो एसिड that never synthesize in our body, that comes from the food resources, are known as essential amino acids. It means it comes from food resources, not synthesized in body, not synthesized in body। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते इसलिए वो एसेंशियल है, और जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं, नॉन एसेंशियल विथ रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, विथ रिस्पेक्ट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। आपके घर में 4 भैंस हैं, 4 भैंस दूध खूब बढ़िया से दे रही है, और आपके घर में आपके पास एक भी खेती नहीं है, यानी कि गेहूं खरीद के आ रहा है, आलू खरीद के आ रहा है, चावल खरीद के आ रहा है, भैंस का दूध बस नहीं खरीद के आ रहा है, तो आपके लिए एसेंशियल क्या होगा? दूध जरूरी होगा कि आलू गेहूं चावल जरूरी होगा? सिंपली आलू गेहूं चावल जो घर में नहीं बनता है, जरूरी तो है, दूध भी जरूरी है, लेकिन चूंकि घर में बन रहा है तो अवेलेबिलिटी के बेस पे वो नॉन एसेंशियल। करेंटली कोई काम अगर आपके लिए हो रहा है तो तुरंत तत्काल में जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको ध्यान नहीं देंगे। एक काम होता है घर की मुर्गी साग बराबर। तो यहाँ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज दैट नेवर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड ऑल टाइम रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, यानी हम ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, हमेशा फूड आइटम पे डिपेंड करता है, खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, यानी इसी अमीनो एसिड की वजह से मरेंगे जो हमारे बॉडी में जरूरी है और खाने के रास्ते हैं, हम उसकी वजह से कभी नहीं मरेंगे, जो बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहा है। जो बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है उसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। ऐसा नहीं कि बॉडी में, अब नॉन एसेंशियल का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अनइम्पोर्टेंट समझ लेंगे, वेस्ट नहीं।
वो करेंटली यूज होगा, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे वो हमारे बॉडी में अवेलेबल है, इसलिए वो नॉन एसेंशियल। मैंने बताया घर की मुर्गी साग बराबर वाली कहानी। तो ये हो जाएगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मींस इसके बारे में आप थोड़ा सा जगह है लिख लीजिए, दैट synthesized in our body, so non essential. I hope your concept regarding the essential and non essential amino acid is clear. Now back to the example of 10 essential and 10 non essential with easy trick. Now the types of amino acids by means of essential and non-essential, essential and non-essential, essential and non-essential. It essential, it from food, it gain from the food, and non-essential from body. ये बॉडी में ही अवेलेबल है, तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन बॉडी, ये बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहा है, इन बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक ट्रिक दे दे रहा है, नोट करना है, VALLHITTPM, पूरा पूरा कवर कर देना है। वॉल हिट पीएम, ट्रिक क्या है, कोई बॉल उठा के खींच के बॉल उठा के दीवार पे मारे, कौन मार रहा है, पीएम मार रहा है, प्रधानमंत्री मार रहा है, ठीक है। वॉल डब्ल्यू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे VALL लगाएंगे, यानी कि ये अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अमीनो एसिड्स इधर हो गया। और उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक दे दे रहे हैं, आपको नोट करना है, AAA CSP प्रो। ये क्या क्या हो जाएगा, AAA CST प्रो। CST क्या है, कुछ भी मान सकते हो कि एक टर्मिनस, एक मुंबई का प्लेटफॉर्म है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, CST बोलते हैं, ठीक है। वहां पे आग लग गई, ठीक है, क्या लग गया, आग। और आग को कैसे डिफाइन किया मैंने, AAA से। अब AAA से तो आग बोलते हैं, एक और ए लगा दूंगे तो क्या दिक्कत है, आग बहुत बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि ये क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मुझे इसी तरीके से याद है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं, अब आसानी से लिख लेंगे। क्या होगा, वैलिन, इसको कैसे लिखेंगे, वैलिन, इसमें क्या होगा, अर्जिनिन, इसमें क्या होगा, लाइसिन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ल्यूसीन, यहां पे क्या होगा, हिस्टिडीन, यहां पे क्या होगा, आइसोल्यूसिन, यहां पे टी क्या है, ये थ्रियोनीन, और ये क्या है, ये है ट्रिप्टोफैन, ये क्या है, फेनिल एलानाइन, और ये क्या है, मेथियोनिन। वैलिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलानाइन, वाई है फेनिल एलानाइन, मेथियोनिन, NINE, मेथियोनिन, ठीक है। अब आते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, ये क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या है, यहां पे अर्जिनिन है, ये क्या है, एस्पैराजीन, ठीक है। और ये क्या है, एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन, एलानाइन, ये क्या है, ग्लाइसिन, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड, 8
क्या है सेरीन, ये क्या है टाइरोसिन, टाइरोसिन, और ये क्या है प्रोलीन। तो ये हमारा क्या हो गया 10 जो है एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। अगर 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें शॉर्ट ट्रिक आता है, कहीं कहीं शॉर्ट नेम आता है, तो शॉर्ट नेम यहाँ पे मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। वैलिन को VAL से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जिनिन को ARG से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइसिन को LYS से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूसिन को LEU से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन को HIS से रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोल्यूसिन को ILE से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कैपिटल I है, ये L, स्मॉल LE। अब आते हैं थ्रियोनिन को THR से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिप्टोफैन को TRP से रिप्रेजेंट करते हैं, फेनिल एलानाइन को PHE से रिप्रेजेंट करते हैं, मेथियोनिन को MET से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म है भाई, बाकी चीजें लंबी लंबी हो जाएंगी तो आगे 12 में सिर्फ सारे प्रोटीन्स को शॉर्ट फॉर्म में एक पॉलीमर अगर हम लिखेंगे तो हमें ये पॉसिबल नहीं कि बड़ा बड़ा नेम लिखे भी और स्पेस बचेगा, 2 ही 4 अमीनो एसिड्स में ये भर जाएगा, इसलिए शॉर्ट टर्म यूज करते हैं। इसमें आते हैं एस्पार्टिक एसिड में ASP यूज करते हैं, एस्पेराजिन में ASN यूज करते हैं, एलानाइन में ALA, ग्लाइसिन में GLY, ग्लूटामाइन में ग्लूटामिक एसिड में GLU और ग्लूटामाइन में GLN, सिस्टीन में CYS, सेरीन में SER, टाइरोसिन में TYR और प्रोलीन में PRO। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आई होप अब इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और आप भी ट्रिक के साथ इसको किसी को भी कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 10 एसेंशियल में वॉल हिट PM, 10 नॉन एसेंशियल में AAA CH3 प्रो। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन अमीनो एसिड्स, कुछ कॉमन अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन अमीनो एसिड्स, कुछ कॉमन अमीनो एसिड्स को हम बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। कुछ आपको लिए होमवर्क दे देंगे, सर्च करके आप लिख लेंगे, और कुछ का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ। देखो, कॉमन से स्ट्रक्चर के लिए हमको कॉमन सा बेसिक प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब मैं ड्यूटेरान बता रहा था तो आपको बताया था कि कॉमन से अमीनो एसिड्स का एक सेंट्रलाइज्ड कार्बन एटम होता है, जिसमें एक साइड में एमीन ग्रुप, दूसरे साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नीचे जो है मेथियोनिन, नीचे जो है हाइड्रोजन ग्रुप, और ऊपर जो है एक फंक्शनल ग्रुप, वही R की वैल्यू बदल जाती है तो हमारा नेम ऑफ अमीनो एसिड बदल जाएगा, अमीनो एसिड का टाइप बदल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं कॉमन से अमीनो एसिड्स में क्या बताया था। एक जो है आपका कार्बन एटम, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे एमीन ग्रुप, यहाँ पे H। अब यहाँ पे जो R की वैल्यू है ना, R की वैल्यू हम बदल देंगे तो पूरा का पूरा मैटर बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अगर H रख दें तो ये एक अमीनो एसिड हो गया, R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रख दिया है H, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो एग्जाम वगैरह में पूछता है ग्लाइसिन का। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन का है। अगर R इज इक्वल टू H हो जाए तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, यहां मैं और आपको बता दे रहा हूं। अगर R इज इक्वल टू CH3 रख देंगे, मेथिल ग्रुप रख देंगे, तो वो एलानाइन हो जाएगा। एलानाइन यानी कि CH3 ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एलानाइन का। यहां पे लिखेंगे एलानाइन। ठीक है, मेथिल रखेंगे तो यहां पे लिखेंगे ग्लाइसिन, और यहां पे सिर्फ जो है सिर्फ हाइड्रोजन रखेंगे, यानी दोनों साइड हाइड्रोजन तब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। यहाँ पे मेथिल रख देंगे तो ये हो जाएगा एलानाइन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर R इज इक्वल टू CH2SH कर दोगे, CH2SH, तो वो सिस्टीन हो जाएगा, यानी कि ये CHSH, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा सिस्टीन का। ठीक है, सिस्टीन अभी इसी वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि सिस्टीन जो है वो एमिनो एसिड से, ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, सिस्टीन का। नोट कर लो, कापी फटाफट नोट करो, एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स को। क्लियर है ना।
अब आते हैं नेक्स्ट, सिर्फ इसी को बदलना है, सबको सिर्फ इसी को बदलना है, ठीक है, सब नोट कर लेना। अब R इज इक्वल टू CH2OH कर देंगे तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेरीन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि HOH कर दिया तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, सेरीन का, ठीक है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेरीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेरीन का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो आते हैं नेक्स्ट, सिर्फ इसी को बदलना है, ठीक है। अब R इज इक्वल टू, अगर एक CH2 के साथ एक बेंजीन ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, R इज इक्वल टू C6H6CH2 ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा फेनिल एलानाइन, और C6H6 को आप जानते हैं इससे बेंजीन बन जाता है, आसानी से बेंजीन ग्रुप बन जाता है, यानी कि CH2 और यहां पे एक बेंजीन ग्रुप ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर फेनिल एलानाइन। तो ये तो कुछ कॉमन से स्ट्रक्चर हो गए, कुछ कॉमन सा आपको क्या मिल गया, एक आइडिया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि क्या बदलता है। बेसिकली सिर्फ यही बदलता है, ईमानदारी से कहें तो सिर्फ यही बदलता है, बाकी इतनी चीजें कॉमन है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पार्ट कॉमन है, ये सभी अमीनो एसिड्स में 20 टाइप्स के जितने भी अमीनो एसिड होते हैं ये कॉमन होते हैं, बाकी यही बदलता रहता है। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे तो डायरेक्ट ड्यूटर आयन के फॉर्म में दे देगा स्ट्रक्चर, यानी कि यहां से H हटाएगा तो यहां से NH पॉजिटिव आयन हो जाएगा 3, यहां से NH पॉजिटिव आयन 3 हो जाएगा और यहाँ पे एक निगेटिव आयन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आपका हो जाएगा एक स्टेबल जो है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। लेकिन अमूमन हमको लिखना क्या है, यहाँ पे H लगा देना, यहाँ पे NH2 लगा देना, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ कॉमन सा आपको अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बता दिया। अब आपको करना क्या है, इन ऑर्डर टू राइट एट लीस्ट 5 more structure of different other kinds of amino acid that not studied and not taught by me in this video lecture। आपको करना है कॉपी में कि 5 और अलग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर ढूंढने हैं, कहीं से भी ढूंढो, कहीं से भी लिखो, लेकिन ढूंढने हैं, लिखने हैं, ठीक है। किसमें लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। कितना, 5 more अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर खोज के लिखने, जो इसमें नहीं, इसमें क्या क्या बताया, एलानाइन बताया, ग्लाइसिन बताया, सेरीन बताया, सिस्टीन बताया, और आपको क्या बता दिया, आपको फेनिल एलानाइन बताया, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने सर्च करके कहीं से भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 more अमीनो एसिड्स के बारे में और डिटेल लिख लेने हैं कॉपी में। In this video lecture, you have learned the types of amino acids, the essential that are not synthesized in body and non-essential that synthesized in our body, the tricks for the writing of essential and tricks for the writing of non-essential amino acids, and the structure of common types of amino acids. In next video lecture, you will learn the polymerization of proteins. Polymerization of amino acid to form the protein. How one molecule of amino acid linked with another molecules through a peptide bond, and how peptide bond form, and how do the polymer of peptide created. It will discuss in next video lecture. In next video lecture, you will learn the concepts of different kinds of primary, secondary, and tertiary structure of proteins. Thank you.